جانو سے لیکن قریب آپ ہیں یا نبی رحمت اور کیسا بے مثل پیغمبر اللہ نے ہم کو دیا ہے. لوگ حسن یوسف کی قسم کھاتے ہیں لیکن میرے محبوب کا عالم یہ ہے کہ جن کو دیکھے تو یوسف بھی قربان ہو، جن کو دیکھے تو یوسف بھی قربان ہو، جن کو دیکھے تو یوسف قربان ہو. وہ ہنسی نازنی مہجبی آپ ہیں، وہ ہنسی نازنی مہجبی ہیں یا نبی رحمت عالمی. اور گیسو رخ کی قرآن نے کھائی قسم، گیسو رخ کی قرآن نے کھائی قسم، گیسو رخ کی قرآن نے کھائی قسم. ایسے بے مثل ایسے ہنسی آپ ہیں، ایسے بے مثل ایسے ہنسی ہیں یا نبی ہیں یا نبی رحمت عالمی ہے یا نبی رحمت عالمی. کون نبی پہنچا ہے اس مقام پر جہاں میرا محبوب پہنچا ہے، جہاں میرا آقا پہنچا ہے، جہاں نبیوں کا تاجدار پہنچا ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ بزم قوسین میں کون ہے جلوگر، بزم قوسین میں کون ہے جلوگر، بزم قوسین میں کون ہے جلوگر. آپ ہیں سید المرسلین، آپ ہیں سید المرسلین ہے یا نبی رحمت عالمی. حضور جمال ملت فرماتے ہیں کہ قبر خوش تر کو بھی جو منور کرے. ان کے رہتے ہوئے تیرگی کا تصور کیسا. قبر خوش تر کو بھی جو منور کرے، قبر خوش تر کو بھی جو منور کرے. سیدی ایسے ماہ مبین آپ ہیں، سیدی ایسے ماہ مبین ہے یا نبی رحمت عالمی آپ ہیں. اور ہمارے نبی سے لوگوں نے عرض کیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت میں ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے، کہاں تلاش کریں گے یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے جانثارو مجھے حوض کوثر پر دیکھ لینا. میری امت اگر پیاس سے تڑپ رہی ہوگی تو میں اپنے عاشقوں کو جام کوثر سے سیراب کرتا ہوا نظر آ جاؤں گا. یا رسول اللہ اور کہاں تلاش کرے؟ کہا اگر وہاں نہ ملوں تو میزان عدل پہ آ جانا. میری امت کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اگر میرے عاشقوں کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی کمی پڑ رہی ہوگی تو میں نیکیوں میں اضافہ کرتا ہوا نظر آ جاؤں گا. اور اگر وہاں بھی نہ ملوں
تو آ جانا پل صراط پہ. جہنم کے اوپر پل صراط پھال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. گزرنا ہے، سب کو گزرنا ہے، سب کو گزرنا ہے. جبریل امین نے التجا کی تھی میرے آقا سے، یا رسول اللہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو جبریل کو اپنے پر بچھانے کی اجازت مل جائے تاکہ آپ کی امت کے قدم کٹ کٹ کر نیچے نہ گرے، میرے پر کے اوپر رہے. نبی کے التجا کی ہے، لیکن نبی کا جو غیور عاشق ہے نا وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم کو جبریل کی کیا ضرورت ہے، آپ کے رہتے ہوئے ہم کو جبریل کی کیا ضرورت ہے. یا رسول اللہ پل سے اتارو، یا رسول اللہ آپ گزارو، پل سے گزارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. کہاں تلاش کریں گے؟ کبھی حوض کوثر پر دیکھنا، کبھی حوض کوثر پر دیکھنا، کہیں میزان عدل میں دیکھنا، کہیں پل صراط پر دیکھ لینا. شاعر فرماتے ہیں کہ قبر میں، ابھی آپ نے سنا نا کہ وہ ہمارا محبوب ایسا ہے جو ہر جگہ ہمارے کام آئے گا، کہ قبر میں، حشر میں، پل پہ، میزان پہ. قبر میں، حشر میں، پل پہ، میزان پہ. قبر میں، حشر میں، پل پہ، میزان پہ. جو جہاں بھی پکارے وہی آپ ہیں، جو جہاں بھی پکارے وہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد رسول اللہ. تقریباً سب کو یاد ہوگا کیونکہ کلمے کا ایک جز محمد رسول اللہ کی. محمد الرسول اللہ کیا مطلب؟ محمد اللہ کے، بولیے آپ کو سب معلوم ہے، محمد اللہ کے، بلند آواز سے بولو 10 منٹ اور. محمد اللہ کے رسول، 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 رسول ہیں، رسول. اگر تھے کہو گے تو ایمان ماننا پڑے گا. رسول، محمد اللہ کے رسول، اور ہے اس کو کہا جاتا ہے جو موجود ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جو موجود ہوتا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. اب پتا چلا ملا کی مت مانو، اللہ کی مانو. محمد اللہ کے رسول ہے. اما اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ذات میرے نبی کی کہ لب تھر تھرانے لگتے ہیں. نبی کا نام آتا ہے تو آسان قابو میں نہیں رہتے. کہاں یہ چھوٹا منہ، کہاں بڑی بات، کہاں یہ خاکی زبان، کہاں وہ نوری ذات. اللہ اللہ، کہاں ہم کہاں مصطفیٰ. توبہ توبہ، کہاں ہم کہاں مصطفیٰ. یہ بدن خاک کا، وہ بدن نور کا. میرے آقا کی تعریف ہم بیان کریں
तौसीफ हम बयान करें। याद रखो, किसी की तारीफ करने के लिए उसकी मारिफत जरूरी होती है, किसी की पहचान कराने के लिए उसकी पहचान हासिल करना जरूरी होता है। अगर आपसे कहा जाए कि आप मौलाना जीलान की तारीफ करिए, तो आप कहेंगे जो नमाज पढ़ने आते हैं, जो पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, वो इनकी क्वालिटी बयान करते चले जाएंगे। लेकिन जो नहीं आते वो ये कहेंगे हजरत हम तो जानते ही नहीं है इनको, हम तारीफ कैसे करें, हमको तो इनकी मारिफत नहीं है, हम इनकी तारीफ कैसे बयान करें। मेरे नबी की शान तो वो शान है, वो शान है कि सुबह से रात हो जाए, पूरा साल गुजर जाए, लाजुम को सनाऊ कमा काना हक़हू बादत खुदा, बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर कोई तारीफ कर ही नहीं सकता। तारीफ करने वालों ने कोशिश की है और कहने वालों ने कहा है या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, इल्म नसीब हूं तुझे उम्मीद कहूं, है जाने जा मैं काने तमन्ना कहूं तुझे। लेकिन कलम तोड़ दिया, कलम तोड़ दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उम्र, ये जज्बा, जवानों नसीहत लो। आज हमारे जवानों के जज्बात बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं। अल्लाह इनकी उम्र में इकबाल में बरकतें अता फरमाए। और हकीकत ये है, मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। अल्लाह ताला और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, उम्र इकबाल में बरकतें अता फरमाए। तो मारिफत के लिए, किसी की तारीफ करने के लिए, किसी की तौसीफ करने के लिए उसकी मारिफत जरूरी है, उसकी पहचान जरूरी है। हम नबी की पहचान कैसे करें? ऐ अबू बकर सिद्दीक, सिद्दीक अकबर आप बताइए, फारूक आजम आप बताइए, उस्मान गनी आप बताइए, मौला अली आप बताइए। लेकिन सुनो सुनो, नबी को किसी ने पहचाना ही नहीं है, नबी को किसी ने पहचाना नहीं है। सफर में रहे, हजर में रहे, साथ में रहे, जंग में रहे, आसाइश में रहे, मुसीबत में रहे, लेकिन नबी को किसी ने पहचाना नहीं। वो सिद्दीक अकबर जो गार में नबी के साथ है, वो सिद्दीक अकबर जो मज़ार में नबी के साथ है, वो सिद्दीक अकबर जो हिजरत में नबी के साथ है, वो सिद्दीक अकबर जो सफर में नबी के साथ है, हजर में नबी के साथ है, जंग में नबी के साथ है, हर मरहले में नबी के साथ है। सुबह नबी के साथ हो रही है, शाम नबी के साथ हो रही है। उस अबू बकर सिद्दीक के लिए मेरे आका ने फरमाया, है अबू बकर, या अबू बकर लम यारिफनी हकीकती सिवा गैरो रब्बी। ऐ अबू बकर, तुम सफर में मेरे साथ रहे, हजर में मेरे साथ रहे, जंगों में मेरे साथ रहे, गार में मेरे साथ रहे। या अबू बकर लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, लेकिन है अबू बकर, मेरे रब के अलावा मेरी हकीकत को कोई ना जान पाया। क्या? मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने न जाना। रब के सिवा बस थोड़ी देर, मैं 10:30 बजे 11:30 पे खत्म कर दूंगा, आप परेशान मत होइए। गौर करो, ऐ अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। अब कलम और कागज लेकर बैठकर रब के सिवा की लिस्ट बनाओ। अल्लाह के अलावा कौन कौन है उनकी लिस्ट बनाओ। मुफ्ती मौलवी रब के सिवा, आलिम रब के सिवा, मुफ्ती रब के सिवा, मुहद्दिस रब के सिवा। बोलो मुहद्दिस अल्लाह है क्या? है? मुफ्ती रब के सिवा, मुहद्दिस रब के सिवा, मुज्तहिद रब के सिवा, गौस रब के सिवा, ख्वाजा रब के सिवा, औताद रब के सिवा, अब्दाल रब के सिवा, अख्ताब रब के सिवा,
ताबईन रब के सिवा, तबे ताबईन रब के सिवा, इमाम आजम रब के सिवा, इमाम शाफई रब के सिवा, इमाम अहमद रब के सिवा, इमाम अहमद इब्ने हम्बल रब के सिवा। और आगे पढ़ो, हजरत अबू बकर रब के सिवा, फारूक आजम रब के सिवा, उस्मान गनी रब के सिवा, मौला अली रब के सिवा, हजरत तलहा रब के सिवा, जुबैर रब के सिवा, साद रब के सिवा, बिलाल रब के सिवा, 1,24,000 साहबा रब के सिवा। और आगे बढ़ो, आदम रब के सिवा, नूह रब के सिवा, ईसा रब के सिवा, इब्राहिम रब के सिवा, इस्माइल रब के सिवा, इसहाक रब के सिवा, यूसुफ रब के सिवा, दाऊद रब के सिवा, दानियाल रब के सिवा, मूसा रब के सिवा। अल्लाह अल्लाह लिस्ट बनाते चले जाओ। गोया मेरा पैगंबर ये फरमाना चाह रहा है, आदम अबुल बशर जरूर है, लेकिन मेरी हकीकत को आदम ने न जाना। नूह नबी जरूर है, मेरी हकीकत को नूह ने न जाना। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मेरी हकीकत को रब के सिवा किसी ने न जाना। पता क्या चला कि मुस्तफा की जात का इरफान सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं। तफसीर रूहुल बयान में आता है कि मेरे नबी के चेहरे पर 70,000 नूरानी पर्दे पड़े थे। 70,000 नूरानी हिजाब पड़े थे। उन हिजाबों से छन छन कर जो नूर बाहर आता था, उसका कमाल ये था कि अरब के मर्द रुखे मुस्तफा को देखकर अपनी गर्दनें कटवा लिया करते थे। अल्लाह क्या तारीफ बयान करे कोई मेरे आका की। हमारा जात तो बहुत अरफा वाला है, मेरे नबी का नाम ही देख लो ना, कैसा बेमिसाल नाम है, मोहम्मद। और जैसे नबी का नाम आता है, आशिक मोहब्बत के साथ अंगूठों को चूम कर आंखों से लगा लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, कुछ लोग मुंह टेढ़ा कर लेते हैं, क्या कदर शिरिक बेटा, वो बड़ा गाढ़ा शीन निकाला है भाई, ये शिर्क कहाँ से हो गया? तो शिर्क, हमने कहा शिर्क कहते किसे है? क्या खुदा को चूमा जा सकता है? बोलो, क्या खुदा को चूमा जा सकता है? हमारा खुदा वो है जो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, माताओं मादियात से पाक है। मिलाद मनाना शिर्क। अरे नालायको, मिलाद मना रहे हैं, नबी की पैदाइश का जिक्र कर रहे हैं। हम तो अपने नबी को ये मानते हैं कि नबी पैदा हुआ, और जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता, जो खुदा होता है वो पैदा नहीं होता, है कि नहीं? नबी हर अदा के साथ हम देखो क्या प्यारा नाम है, मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेमिसाल। अंगूठे आशिक चूम लेते हैं, कुछ कहते हैं हम नहीं चूमेंगे। हमने कहा भाई मत चूमो, जब भी मेरे नबी का नाम लोगे ना, मोहम्मद, तुम अंगूठे नहीं चूमोगे, तुम्हारे लब आपस में एक दूसरे को चूम लेंगे। वो नाम लेके देखो जरा, सुभान अल्लाह, मोहम्मद। ऐसा लगता है एक होठ ने दूसरे होठ को चूम लिया, और जिस तरह चाशनी में तार उठता है, नबी का नाम लो, वैसे ही जबान होठों पर एक चाशनी महसूस होती है। अल्लाह अल्लाह, ये नाम भी कितना हसीन है। लोग नाम रखने वाले नाम रखते हैं, कोई अपने नाम रखते हैं, कोई परायों पे नाम रखते हैं। याद रखो कि नाम अच्छे रखना बच्चे के लिए सबसे पहले, बाप के लिए सबसे जरूरी है कि अच्छा नाम रखना, उसका हक। वरना तो ऐसे ऐसे नाम हो। क्या नाम है भाई आपका? हमारे बुजुर्ग बताते थे छत्तीसगढ़ में बड़ी जिहालत थी किसी जमाने में, अब तो खैर बहुत तरक्की याफ्ता हो गया। वो बोले क्या नाम है तुम्हारा? कहा इब्लीस। लाहौल वाला कुव्वत है, इब्लीस ये कोई नाम? कहा कुरान से निकाला है। क्या नाम है? झाड़ू भी। झाड़ू भी
पत्ते खां, फलाना ढिकाना, तो नाम क्या है? बुद्धू। कहा बुद्धू का है नाम? कहा हजरत बुद्ध के दिन पैदा हुए थे इसलिए बुद्धू। नाम क्या है? कहा शुभराती। है को भाई शुभराती? कहा शुभरात में शब बरात में पैदा हुए तो शुभराती नाम। तो नाम क्या है? क्या हमारा नाम जो है बुधुआ है। बुधुआ में काहे को भाई तुम्हारा नाम बुधुआ काहे को रखा? कहा वो हमारे अब्बा कह रहे थे कि हमारे और भाई पैदा हुए थे, उनके नाम अच्छे अच्छे रखे तो अल्लाह को प्यारे हो गए, इसलिए बुद्धू नाम रख दिया ताकि अल्लाह को प्यारा ना होने पाए। अल्लाह भी सोचेगा माज़अल्लाह नक़ले कुफ्र कुफ्र नाबाशत, ये बुद्धू है, इसको बुला के क्या करेंगे? तो हम अल्लाह को प्यारे नहीं होंगे, इसलिए अब्बा ने नाम बुधुआ रख दिया। ऐसे ऐसे नाम है जो बड़े फख्र से कुरान से निकाला है। नाम अच्छे, मेरे नबी के नाम पे नाम रखो, है ना? बुजुर्गान दीन के नाम पे नाम रखो। और याद रखो कि जब भी हम लोग बुजुर्गान दीन के नाम पे नाम रखते हैं तो वहां माने मुराद बहुत कम लोग लेते हैं, बल्कि उस बुजुर्ग के नाम से बरकत हासिल करना यह मकसूद होता है। उस बुजुर्ग के नाम से बरकत हासिल करना यह मकसूद होता है। और उसमें कोई कहे चाहे ना कहे, मुझे कह लेने दिया जाए। आपके इलाके के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत बाबा सैयद फखरुद्दीन अब इनके नाम पे लोग नाम रख रहे हैं बाबा फखरुद्दीन, बाबा फखरुद्दीन। क्या कोई ये सोच के नाम रखता है कि जैसे वो थे वैसे ये है? नाम फखरुद्दीन इसलिए रखा गया है ताकि उनके नाम या उनके लक़ब से बरकत हासिल की, है ना? और उसमें गुलाम महजूब रहता है। गोया फखरुद्दीन नाम तो रखा गया है, हकीकत में है गुलाम फखरुद्दीन। अल्लाह ताला हमको और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, औलाद का पहला हक है कि उसका अच्छा नाम रखा। मैं कई मरतबा बयान कर चुका हूं, लेकिन फिर बयान करने का जी चाह रहा है। एक शख्स ने अपने बच्चे का नाम रखा गुलाम गौस। घूम के बोलो यार, पूरा आंध्रा अनंतपुर मुझे फख्र होता है ये कहते हुए, यहाँ जिसको देखो ज्यादातर नाम बुजुर्गों के नाम पर है, ज्यादातर नाम बुजुर्गों के नाम पर है। और ये तुम्हारा ही सिर्फ नहीं, तुम्हारे माँ बाप के अकीदे को भी जाहिर करता है। किसी ने अपने बच्चे का नाम रखा गुलाम गौस। पूछने वाले ने पूछा तुमने अपने बच्चे का नाम गुलाम गौस क्यों रखा? कहा हजरत 3 वजह है गुलाम गौस नाम रखने की। कहा क्या वजह है? कहा पहली बात तो ये है कि मैं अपने बच्चे का नाम रख दिया है गुलाम गौस। जिंदगी का हजरत कोई भरोसा नहीं है, मैं कब मर जाऊं, लेकिन ये मेरा बच्चा रहेगा। लोग गुलाम गौस गुलाम गौस गुलाम गौस कहेंगे। पूछेगा किसने नाम रखा है, बताएगा मेरे बाप ने नाम रखा है। लोग समझ जाएंगे इसका बाप बदअकीदा नहीं था, बल्कि गौस का पाने वाला था, गौस का मानने वाला था, इसीलिए अपने बेटे का नाम गुलाम गौस रखा। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि सारे गौस के चाहने वाले भी इसको गुलाम गौस कहेंगे, गुलाम गौस कहेंगे। और जो गौस के दुश्मन होंगे ना, वो भी मजबूर होकर इसको गुलाम गौस कहेंगे। तो तीसरी बात क्या है? तीसरी वजह ये है कि पूरी दुनिया इसको कहेगी गुलाम गौस गुलाम गौस गुलाम गौस गुलाम गौस। घर वाले कहेंगे गुलाम गौस, बाहर वाले कहेंगे गुलाम गौस, अपने कहेंगे गुलाम गौस, पराए कहेंगे गुलाम गौस। अगर एक मर्तबा गौस ने कह दिया है गुलाम गौस, है गुलाम गौस, मेरे बच्चे की भी बन जाएगी, मेरी भी आखिरत समझ आएगी। नाम अच्छे रखो, बुजुर्गों के नाम पे नाम रखो, हदीस और अंबिया किराम के नाम पे नाम रखो, मेरे आका के नाम पे नाम रखो। और जब भी नाम रखो ना तो मोहम्मद या अहमद की इजाफत लगा तो सारे झगड़े ही खत्म। मोहम्मद या अहमद की इजाफत लगा तो उसकी बरकतें हासिल होती है।
اس کی برکتوں سے پورا گھر مستفیض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ایسے ویسے نام رکھو. اور اکثر دیکھیے کبھی کبھی ناموں کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. کبھی تو بالکل مانے بالکل فکس ہوتے ہیں, کبھی بالکل اپوزٹ. معلوم نام کیا؟ غریب چند. کیا نام ہے؟ معلوم کروڑ پتی آدمی. نام کیا؟ رئیس. وہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ چپراسی ہیں. ایسے نام بھی نہیں ہونا چاہیے. نام رکھتا ہے آدمی نے دیکھا کیا نام ہے بھائی, اس کا چہرہ ایسا ہے, نام رکھ دیا. کبھی کبھی ہم لوگوں کے پہچاننے میں غلطی ہو جاتی ہے. ہم نام رکھے, ہم کوئی مستقبل جاننے والے کون ہے, نام رکھ دیا اس کا عبد الرحمان, نام رکھ دیا گیا رحمت. معلوم ہے بعد میں چل کے وہ زحمت ہو رہا. نام کچھ رکھ دیا, نام غلط ہو سکتا ہے. ہم نام رکھیں غلط ہو سکتا ہے, لیکن پروردگار جس کا نام رکھے, ہم نام رکھیں غلط ہو سکتا ہے, لیکن جس کا نام پروردگار نے محمد رکھا. محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد. محمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ہر ہر لمحہ تعریف کی جائے, ہر ہر آن تعریف کی جائے, ہر ہر گھڑی تعریف کی جائے, ہر ہر لحظہ تعریف کی جائے, اس کو محمد کہا جاتا ہے. اب مجھے کہہ دینے دیا جائے, ہم نام رکھتے ہیں تو غلط ہو سکتا ہے, لیکن جس کا نام خدا نے محمد رکھا ہے, اس کی صبح بھی محمد ہوگی, اس کی شام بھی محمد ہوگی, اس کا سفر بھی محمد ہوگا, اس کا حضر بھی محمد ہوگا, اس کا سارا وجود محمد ہوگا. کیسا بے مثال نام ہے. میرے آقا کی شان, اللہ اکبر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا احد فی العرش. میں جب عرش پہ تھا تو میں احد تھا. میں احمد فی السماء, اور آسمانوں میں آیا تو احمد ہوا. وہ محمد فی الارض, اور زمین میں ہوں تو محمد, اور آخرت پہ جاؤں گا تو محمود. موسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی ہے تو موسیٰ, عیسیٰ دنیا میں بھی ہے عیسیٰ, عرش پہ بھی ہے عیسیٰ. لیکن یہ میرے نبی کی شان تو دیکھو کہ اگر عرش پر ہے تو احد ہے, آسمانوں میں ہے احمد ہے, زمین پہ آئے محمد ہوئے, مقام محمود عطا ہوگا, محمود ہوں گے. ہر جگہ حمد ضروری ہے, چاہے احمد ہو اس میں بھی حمد ہے, محمد ہو اس میں بھی حمد ہے. اللہ اللہ, محمود میں بھی اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے نبی, اب جیسے ہی کہا گیا نا کہ احد تھا میں عرش پر, کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا. احد تو اللہ تعالیٰ ہے, احد تو اللہ تعالیٰ ہے, احد تو اللہ کا, قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. نادانو ذرا غور کرو, میرا پیغمبر فرما رہا ہے انا احد فی العرش, میں عرش میں, اور ہمارا خدا زمین و زمان سے پاک, مکین و مکان وہ عرش میں نہیں ہے. اس کے لیے تو ہم کہتے ہیں وہ لا مکان, اور جو مکان میں آ جائے وہ خدا نہیں, اور جو خدا ہوتا ہے وہ مکان میں نہیں. آپ کے معنی مراد یہ شرک ہو گیا. کیسے شرک ہو گیا بھائی؟ شرک کی تعریف تو سمجھ لیں میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں. اچھا بتاؤ آپ زندہ ہو کہ نہیں ہو؟ کون کون زندہ ہے؟ ہاتھ اٹھائے ذرا محبت سے. جو زندہ ہے ہاتھ اٹھائے بھائی. سب زندہ ہے؟ اچھا بتاؤ اللہ تعالیٰ زندہ ہے کہ نہیں؟ وہ الحی القیوم, زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہو گیا شرک. اللہ بھی زندہ, تم بھی زندہ, شرک ہو گیا. اچھا بتاؤ تم دیکھنے والے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ نہیں؟ وہ سمیع البصیر, اللہ بھی دیکھ رہا ہے, تم بھی دیکھ رہے ہو, ہم بھی دیکھ رہے. ہو گیا شرک. بیٹھے عالم لوگ بیٹھے ہیں, عالم ہے, اللہ تعالیٰ عالم ہے کہ نہیں؟ عالم الغیب والشہادہ. مولانا بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی مولانا. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. بتاؤ ہو گیا شیر. آپ کہیں گے حضرت اب کیا کیا جائے,
शिर्क की डेफिनेशन समझ लो। कहा जाता है अल्लाह की ज़ात व सिफात में किसी को बराबर ठहराना ये शिर्क। अल्लाह को जिंदा मान रहे हम भी जिंदा, अल्लाह देख रहा है हम भी देख रहे हैं, अल्लाह सुन रहा है हम भी सुन रहे हैं, अल्लाह आलिम है ये भी आलिम है, अल्लाह मौलाना है ये भी मौला। शिर्क हो गया। नहीं दोस्तों, फर्क है। अल्लाह देखता है, बजाते खुद देखता है। हम देखते हैं, अल्लाह की अता से देखते हैं। अल्लाह जिंदा है, बजाते खुद जिंदा है। हम जिंदा है, उसकी अता से जिंदा है। अल्लाह आलिम है, बजाते खुद आलिम है। हम आलिम है, अल्लाह की अता से आलिम है। पता चला अल्लाह के तमाम औसाफ ज़ाती हैं, हमारे अताई है। यही फर्क हो जाता है। हम गौसे आजम से मांगते हैं तो ये समझ के नहीं मांगते कि गौसे आजम खुदा है, हम तो महबूब खुदा समझ कर मांगते हैं। मेरे महबूब, मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही बेमिसाल है। तो अल्लाह ताला के भी कई नाम है, मेरे आका के भी कई नाम है। अब गौर करते चले जाओ, अल्लाह का एक जाती नाम है अल्लाह। कितना प्यारा नाम है। पहले दिन आपने तकरीर सुनी, अल्लाह। अल्लाह को लिखा जाए ना तो बीच में तशदीद भी आती है, और तशदीद ऐसे लगती है जैसे कि ताज सर पर रखा हुआ हो। अल्लाह अल्लाह ऐसा लगता है जैसे कि अल्लाह के लफ्ज़ अल्लाह पर ताज रखा है। अब जरा मेरे हबीब का नाम लिखो, मोहम्मद। मीम है, मीम ताल, दूसरा मीम है, उसके ऊपर भी तशदीद नजर आ रही है। या अल्लाह, तेरा और तेरे महबूब का कितना गहरा ताल्लुक है। तेरे नाम पर भी ताज है, तेरे महबूब के नाम पर भी ताज है। यहाँ कौन सा ताज है, यहाँ कौन सा ताज है? इश्क ने रहनुमाई की गौहर रब्बानी। अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह पर जो ताज है वो उसकी यकताई का ताज है, उसकी वहदानियत का ताज है, उसके खुदा होने का ताज है, उसके इलाह होने का ताज है। और जो लफ्ज़ मोहम्मद पर ताज है वो उनकी रिसालत का ताज है, वो उनकी नबूवत का ताज है, वो उनकी महबूबियत का ताज है, वो उनके हबीब खुदा होने का ताज है। एक साथ खड़े हो गए, हजरत अल्लाह का तो एक ही जाती नाम है अल्लाह, उस पे ताज है। लेकिन नबी के तो दो जाती नाम है। आपने मोहम्मद पे तो ताज दिखा दिया, मेरे नबी का एक जाती नाम अहमद भी है। अहमद पे कहा ताज, बड़े मिलाने चले थे आप, खुदा महबूब खुदा। अल्लाह के लफ्ज़ अल्लाह पे ताज, लफ्ज़ मोहम्मद पे ताज दिखाया। नबी के दो जाती नाम हैं, अहमद पे कहाँ ताज है? मैंने कहा बात तो तू ठीक कह रहा है, मेरे पैगंबर के बहुत से नाम हैं, लेकिन दो जाती नाम है, बाकी सिफाती नाम है। एक अहमद है, एक मोहम्मद है। मोहम्मद पे ताज है, अहमद पे ताज नहीं है। मैंने कहा हाँ हाँ, बात तू सही कह रहा है। ये बता, अहमद नाम मेरे नबी का किस जगह का नाम है? कहने लगा आसमानों का नाम है अहमद। मैंने कहा अच्छा अच्छा, हाँ मैं तुझे समझाता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। आज गौहर रब्बानी तुम्हारे सामने बैठकर तकरीर कर रहा है, बात समझ आ रही कि नहीं? अबा भी पहने हैं, अमामा भी पहने हैं, ताज लगाए सर पे, और जब महफिल से कयाम गा जाएंगे तो ताज को उतार के अदब के साथ रख देंगे, क्योंकि घर में ताज नहीं पहना जाता। झूम के बोलो यार, और मचल के बोलो। घर में बादशाह भी होता है तो ताज नहीं पहनता है, घर में ताज नहीं। लेकिन जब हुकूमत में आता है, अपने दरबार में आता है, अपने दरबार में आता है तो ताज पहन कर आता है। पता चल गया अहमद पे ताज क्यों नहीं है, वो नबी का घर है, वो नबी का खिदमतगाह है, वहां नबी घर में है, ताज की जरूरत नहीं है, घर में ताज नहीं पहना जाता। और जब दुनिया में भेजा जाने लगा, मेरे रब ने फरमाया होगा, ऐ मेरे महबूब, अब तुम दारुल हुकूमत में जा रहे हो, अपने गुलामों में जा रहे हो, शहंशाह बन के जा रहे हो, अब बगैर ताज के नहीं जाओगे। जाओ, दुनिया में तुम्हारा नाम मोहम्मद रखा जाएगा और तुम्हारे नाम पर ताज तक लगाया जाएगा। आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे,
दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे, कैसे बेमिसाल नाम है। तमाम इबादतें हम करते हैं, अल्लाह नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज व ज़कात अदा करते हैं, सदका व खैरात देते हैं, लेकिन रोजे को मोमिन की मेराज नहीं कहा गया। रोजे को मोमिन की मेराज नहीं कहा गया, ज़कात देने को मोमिन की मेराज नहीं कहा गया, हज करने को मोमिन की मेराज। लेकिन जैसे ही नमाज की बात आए, इरशाद होता है अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन की मेराज है। या रसूल अल्लाह, ये नमाज मोमिनों की मेराज हो रही है, इसमें ऐसी खास बात क्या है? इश्क ने रहनुमाई की। नादान, मेरे नबी के दो जाती नाम है, एक अहमद है, एक मोहम्मद है। जरा नमाज पढ़ के देख, तुझे पता चल जाएगा ये मोमिन की मेराज क्यों है। हमने अल्लाह अकबर कहकर जैसे नियत बांधी है, आपने देखा अरे हजरत तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे अलिफ हो, और जैसे ही रुकू में कहा अरे ऐसा लग रहा हा है, और जैसे ही सजदे में गए तो लगा जैसे मीम, और जैसे ही तशहुद में बैठे लगा दाल। अब जोड़ो अलिफ ए मीम दाल, क्या बना? अहमद। अल्लाह अल्लाह, जिस इबादत में नबी के नाम का नक्शा नजर आ रहा है, उसको मोमिनों की मेराज करार दिया जा रहा है। नाम का ही मामला है जनाब, नाम ऐसा है तो जात कैसी होगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, ऐसे हसीनो जमील थे, ऐसे हसीनो जमील थे। वाक़या निगारी मकसूद नहीं है, वक्त ज़्यादा हो चुका है, बस मुख्तसर से इसको जिक्र करके अपने बयान को इख्तिताम तक पहुँचाऊँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हसीनो जमील, बहुत खूबसूरत थे। जानते हो, हज़रत ज़ुलेखा पर लोगों ने तानो तशनी करना शुरू की। क्या है तू एक गुलाम पर फिदा हो गई है, तुझे क्या हुआ है कि गुलाम पर आशिक हो गई है? हज़रत ज़ुलेखा ने कहा था कि तुमने अभी मेरे यूसुफ को देखा नहीं है, जब यूसुफ को देख लोगी ना तो मुझ पर एतराज़ करना छोड़ दोगी, मेरा यूसुफ इतना हसीन है। कहा क्या बात है? कहा अच्छा ऐसा करो, मेरे दरबार में तुम औरतें आ जाना, लेकिन सुनो सुनो, वक्त पे आना। जब तुम आ जाओगी तो मैं अपने यूसुफ को तुम्हारे दरमियान भेजूंगी, तुम उसका जलवा देख लेना। अल्लाह अल्लाह, कुरान की आयतों का मफहूम अर्ज करता चलूं। हज़रत ज़ुलेखा ने औरतों को बैठा दिया लाइन से, एक छुरी दी है हाथ में, एक नींबू दिया है, और कहा देखो जब मेरा यूसुफ आए ना, नाम मोहम्मद कितना पावरफुल है ये सुनना। जब मेरा यूसुफ आए ना और जैसे निकाब को अपने रुख से पलटे, तुम औरतें छुरी से नींबू को काट देना। कहा कौन सी बड़ी बात है, हम नींबू तो हम काटते रहते हैं। कहा बात की बात है। अल्लाह अल्लाह, औरतें बैठ गई, एक हाथ में चाकू है, एक हाथ में नींबू है। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम आए और जैसे ही अपने निकाब रुख को पलटा है, किताबों में आता है, कुरान में आता है कि यूसुफ के चेहरे को में औरतें देख रही हैं तो देखती चली जा रही हैं। यहाँ छुरी चल रही है, यहाँ नींबू कट रहा है, नींबू कट गया है, लेकिन रुखे यूसुफ से निगाहें हट नहीं रही है। छुरी चलती चली जा रही है, नींबू के दो टुकड़े हो गए, उंगलियां कट रही हैं, एहसास जख्म नहीं हो रहा है, खून निकल रहा है, लेकिन यूसुफ का जमाल इतना दिल आवेज था। उंगलियां कट रही हैं लेकिन निगाहें हट नहीं रही है। यूसुफ के हुस्न में महव हो गई। जब यूसुफ चले गए, औरतें हैरत ज़दा है, हमने उंगलियां काट ली, हमको एहसास नहीं हुआ। वक्त के मुजद्दिद ने जब इस मंजर को देखा है तो पुकार उठे, अल्लाह अल्लाह, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे ज़ना। हुस्ने बस इस शेर को समझ लो, नामे यूसुफ नहीं, हुस्ने यूसुफ पे, और काटी नहीं। इख्तियारी तौर पर जो अमल वजूद में आता है उसको कहा जाता है काटना, और जो महव होके, बेहोश होके, गुम होके अमल वजूद में आया, वो काटना नहीं, वो कट गया। काटना और है कटना, काटना और है कटना। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में
अंगुष्टे जना, औरतों की उंगलियां, अगर मर्द और औरत का मुआवजा एक पहलू से किया जाए तो अर्रिजालो कव्वामूना अलन निसा, औरतें जज्बाती होती हैं, उनकी बनिस्बत मर्द ज्यादा कवि होता है, ताकतवर होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम आपका हुस्न बेमिसाल है, आपके हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों की उंगलियां काटी नहीं, कटी किसकी? औरतों की। किस वजह से? उसने यूसुफ को देखकर। लेकिन आओ मेरे महबूब की बारगाह में, उसने मोहम्मदी तो बहुत अरफा वाला है, जलवाए मोहम्मदी तो बहुत अरफा वाला है, लेकिन मेरे नबी की शान देखो, उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ते जना, और या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं, कट नहीं जाते हैं, कटाते हैं, हुस्न पे नहीं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे। अरे जात नहीं, नामे मुस्तफा का ये आलम है, नामे हुजूर का ये कमाल है कि हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ते जना, और सर कटाते हैं। हाँ, सर काट लो, मुस्तफा के नाम का जलवा सर कहकर बोल रहा है। सर कटाते हैं तेरे नाम पे। औरतें मर्दाने अरब, वहां औरतों की उंगलियां कट रही हैं, यहाँ मर्दाने अरब सर कटवा रहे हैं। वहां हुस्ने यूसुफ है, यहाँ नामे मोहम्मद है। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे नबी के नाम की तासीर है कि नाम लिख दिया जाए। आज दुआ तावीज़ करने वाले इसमें आज़म की तलाश में रहते हैं, इसमें आज़म मिल जाए सारे काम बन जाएंगे, इसमें आज़म मिल जाए सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आओ आशिकाने मुस्तफ़ा से पूछे, है आशिकाने मुस्तफ़ा आप बताइए आपके नजदीक इसमें आज़म क्या है? तो शायर फरमाता हुआ नजर आएगा, या रसूल अल्लाह आपका नाम है, आपका नाम है, ला रैब वो इसमें आज़म, आपका नाम है ला रैब वो इसमें आज़म। लिख दिया जाए तो कागज का मुकद्दर चमके, लिख दिया जाए तो कागज का मुकद्दर चमके। यह नामे मुस्तफ़ा का कमाल। जब नाम की कोई मिसाल नहीं है तो ज़ाते मुस्तफ़ा का क्या आलम होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।